वो है impossibility, we'll discuss a full-fledged chapter. So there is a question of reciprocal promises. ठीक है, एक बेअंत कौर ने पूछा है, तो so reciprocal promises basically, I will do something only if you do something for me. So I'll do something for you if you do something for me, and that has to happen either on the spot. So there is reciprocal promise में क्या होता है, you give me 100 rupee, only then I'll give you a book. So no credit, nothing else. Reciprocal is we are reciprocating each other, right? You are reciprocating me and I'm reciprocating you. In what sense? In consideration. ठीक है बेन जी, I think you understand now कि you give me money, इसमें ये नहीं होगा कि I will give you money after 2 months. Reciprocal has to be in that way that we are giving the consideration at the moment we are completing the contract. ठीक है, so this is called a reciprocal promises. Reciprocal promises में sometimes there is a chronology also. Chronology का मतलब होता है कि who will do the first thing. For example, so I say कि you just make a furniture for my house, ठीक है, but you have to, I'll give you the wood for that furniture. तो मैंने क्या बोला कि मैं आपको फर्नीचर दूंगी और आपको मुझे फर्नीचर बना के देना 2 महीने में, ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस, आई डोंट गिव यू फर्नीचर, मैं आपको फर्नीचर देती ही नहीं 2 महीने. सो विल यू डू योर रेसिप्रोकल प्रॉमिस? नो, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में जो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट प्रॉमिस, वो मैंने करना है एंड मैंने वो किया नहीं फुलफिल. तो रेसिप्रोकल promises can be fulfilled sometimes when the first stage has to be fulfilled by one person and then the other person. ऐसे तो नहीं होता कि हम ऐसे करते कि ये पैसे और ये बुक ऐसे एक साथ तो नहीं ऐसे लेते हम, right? We say that one person gives the money and other person gives the book, or you give the book and then person gives the money. ठीक है, आप कैंटीन से समोसा लेने जाते हैं, the person gives you samosa and then you give the money, or you give the money first and then. And this is how sometimes we say reciprocal, but then again one has to do the work, give the consideration at the first place. तो यही reciprocal promises होते हैं. Both the parties give something to the other party, right? So this is all about reciprocal. Clear है? Should we go further? किसी और का कोई डाउट तो वो भी पूछ सकते हैं. Any doubt, Beyant? So I think she's not there. मीटिंग में है ही नहीं वो. Anyways, we'll start with the next chapter. किसी और का कोई डाउट है तो बताओ. We'll start with 2.7 today. Quasi contract, contingent contract, termination और discharge of contract. ठीक है, सबसे पहले what is the meaning of quasi? इसका मीनिंग लिख लो अपनी नोटबुक पे. Quasi means half. Quasi का मतलब क्या होता है? आधा, आधा, half. Quasi का मतलब क्या होता है? It is a promise to impose obligations on one party. आज तक हमने कभी कहीं पे ऑब्लिगेशन वर्ड नहीं पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट में. फर्स्ट टाइम वी आर रीडिंग इट इन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वाजी में जो वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन और देयर इज एनीथिंग अबाउट क्वाजी, तो वहां पे कहाँ पे टिक करना या क्या लिखना आपने उसको? ऑब्लिगेशन. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है ऑन वन पार्टी एंड कन्फरिंग द राइट इन फेवर ऑफ द अदर. एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है और दूसरी पार्टी के ऊपर उसका राइट बन जाता है. इट मींस इसमें ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ना कि ऑफर, एक्सेप्टेंस या फिर कंसेंसिस एडिडम से. तो इसमें ना ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होता है, ना कंसेंसिस होता है. तो होता कैसे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से इम्प्लाइड तरीके से बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, a restaurant owner delivered the food parcel to the neighbor of the family which ordered the food. तो क्या हुआ? ऑर्डर किया फूड को अजय कुमार ने, ठीक है, और जो फूड डिलीवरी वाला उसने गलती से उसके साथ वाले घर में जहां तनवीर कौर रहती है वहां पे वो फूड डिलीवर कर दिया. नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ तनवीर? तनवीर को क्या बोलना चाहिए कि आई नेवर ऑर्डर्ड द फूड, मैंने फूड ऑर्डर नहीं किया तो मैं नहीं लूंगी. बट तनवीर क्या करती है? टेक द फूड, ईट द फूड, वो खा लेती है उसको. अजय कुमार कॉल दैट रेस्टोरेंट कि मैंने तो फूड ऑर्डर किया था, मैंने पेमेंट की हुई है, मेरा खाना क्यों नहीं आया? देन द पर्सन इंक्वायर्स एंड फाइंड कि वो तो उसके साथ वाले घर में गलती से डिलीवर हो गया. एंड देन
Ajay Kumar would go to Tanveer saying, "Give me my food." Tanveer says, "मैं क्यों दूं? मैंने तो लिया ही नहीं." तो वो कहते हैं कि आपको डिलीवर हुआ था. Then she says, हाँ हाँ डिलीवर तो हुआ था पर वो मैंने खा लिया. If you have eaten the food, if Tanveer has taken the food and ate the food, then it is an obligation on Tanveer without making any offer, without making acceptance, without making payment. या तो वो खाना उतना वापस करेगी अजय कुमार को लेके देगी, या फिर वो जितने पैसे का था खाना वो उसे वापस करेगी. इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्लिगेशन ऑन तनवीर को. और तनवीर ये नहीं कह सकती क्योंकि गलती से मेरे पास आया तो मैं क्यों मना करूं, ये तो उसकी गलती है डिलीवरी वाले की. यस, डिलीवरी वाले की गलती जरूर है, लेकिन आपका भी राइट नहीं बनता टू ईट दैट फूड. एम आई क्लियर? तो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक ऑब्लिगेशन इंपोज करता है किसके ऊपर, जिसने बेनिफिट लिया है. किसने लिया इस केस में, तनवीर ने. और किसको वो वापस करेगी, अजय कुमार ने, क्योंकि अजय कुमार को ना तो खाना मिला और पैसे भी उससे चले गए. तो यहाँ पे अजय कुमार को या तो खाना मिलेगा जो तनवीर लेके देगी, या फिर पैसे मिलेंगे. एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो किस तरह से हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 में डिफाइंड है. अगर आपको याद हो, जो माइनर का है उसके साथ ये सेक्शन जाएगा. जब भी आप माइनर का सेक्शन, माइनर के बारे में लिखते हैं, उसमें एक लाइन आती है, माइनर इज एंटाइटल्ड टू नेसेसिटीज फॉर लाइफ, किया था हमने. और वो यहीं से आएगी. नेसेसिटीज क्या होती है, ये देखो, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ऑन हिज अकाउंट. तो ये किसके साथ जाता है, माइनर के अकाउंट के साथ. माइनर का सेक्शन कौन सा था, जब हम कर रहे थे पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एट दैट टाइम वहां पे एक वर्ड था दैट माइनर इज एंटाइटल्ड टू पे फॉर द नेसेसिटीज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. वो कहाँ से पेमेंट करता है, अपनी नेसेसिटीज जो इसने उसको दी होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी. और नेसेसिटीज क्या होती है, जो डिपेंड करती है हर पर्सन के ऊपर अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस. हर पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करती हैं उसकी नेसेसिटीज क्या है. फॉर एग्जाम्पल, एक किंग के बेटे की नेसेसिटीज डिफरेंट होंगी, और अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन है उसकी नेसेसिटीज डिफरेंट होंगी. ठीक है. तो 68 टॉक अबाउट क्लेम फॉर नेसेसिटीज, एंड दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इनकैपेबल, ये सेक्शन कब लगेगा, एक पर्सन इनकैपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये सेक्शन किन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, माइनर, लुनेटिक एंड पर्सन हु आर एडजस्ट इंसॉल्वेंट. ठीक है, तीनों लोगों के ऊपर होगा. ये हमने कल किया था, है ना. A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in the life. A is entitled to reimbursed from the B's property. कहाँ से reimbursement मिलेगी उसको, B की property से. Am I clear? A supplies the wife and children of B a lunatic with necessity suitable. तो जरूरी नहीं है A lunatic होना चाहिए तब आपको उसको necessities दे सकते हो. And as per this section, A lunatic है लेकिन उसके ऊपर dependent कौन है, उसकी wife और उसका बच्चा. अगर आप उसकी wife और बच्चे की necessities, बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म, वाइफ की कुछ नेसेसिटीज, ग्रोसरी, कुछ भी जो भी उसकी नेसेसिटीज हैं, अब उसके लिए उसकी एज पर द कंडीशंस इन लाइफ, उनकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली देना. ठीक है. उनकी कंडीशन में वो हर दिन रोटी सब्जी खाते तो पिज्जा नहीं डिलीवर करेंगे हर दिन उनको. ठीक है. नेसेसिटीज इफ यू हैव गिवन, देन द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी. एम आई क्लियर? या तो उसको देंगे जो इनकम्पिटेंट पर्सन है, या फिर उसकी फैमिली को जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. Clear to everyone? Section 69. Reimbursement of persons paying money due by another in payment of which he is interested. तो ये कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसके बारे में. सिंपल 69 तब एप्लीकेबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक लैंडलॉर्ड है, एक ओनर है, जिसके पास एक किराएदार है. तो ओनर क्या रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, और उसका जो किराएदार है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, एक ही घर में. नाउ व्हाट हैपेंस, एक दिन the owner is unable to make the payment to the electricity department. अब क्या करता है वो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाता जितनी उसकी ड्यू है. लेट्स से इट इज 8,000 रुपीज ड्यू है और वो उसके पास पैसे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सेंड्स अ मैसेज कि हम आपकी बिजली को काट देंगे. एंड दैट पर्सन सेज, अगर आपने बिजली काटनी है तो काट सकते हैं, बिकॉज बट आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. तो लैंडलॉर्ड आता है और लैंडलॉर्ड कहता है कि आई कैन मेक पेमेंट. तो लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज उसकी पे कर देता है. नाउ दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ. एक पर्सन उस पैसे को देने के लिए बाउंड बाय लॉ है, क्योंकि बिजली का बिल देना तो बाय लॉ होता है, आपको देना पड़ता है, कोई प्राइवेट नहीं है ये आप जाके मार्केट से खरीदेंगे. ठीक है. एंड अनदर
वाई लैंडलॉर्ड इज पेइंग, बिकॉज अगर उस घर की बिजली जाएगी तो लैंडलॉर्ड की बिजली जाएगी तो उसकी भी जाएगी, जो किराएदार है टेनेंट की भी जाएगी, ठीक है। तो अभी जो टेनेंट है वो पेमेंट कर देता है, तो लेटर ऑन वो जो मनी उसने इकट्ठी पेमेंट की है वो उसके किस में एडजस्ट होगी, उसके किराए में। अगले 2-3 महीने जितने देर तक भी वो 8,000 खत्म नहीं हो जाते, देन द ओनर विल नॉट बी आस्किंग, लैंडलॉर्ड विल नॉट बी आस्किंग मनी फ्रॉम द टेनेंट। एम आई क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 69 में दो चीजें होनी चाहिए। रीइंबर्समेंट की बात हुई है, रीइंबर्समेंट मीन्स वापस लेना, ठीक है। क्या? ऑफ पर्सन्स पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, ड्यू किसकी थी यहाँ पे, ओनर की। पेमेंट किसने की, जो कि इंटरेस्टेड पार्टी थी, वो कौन सी थी, वो था टेनेंट, ठीक है। तो फिर बाद में वो रीइंबर्स कर सकता है। रीइंबर्स या तो पूरे पैसे वापस ले लेगा, या फिर उसे बोलेगा तू मेरे एडजस्ट कर ले इसको अपने रेंट में। एम आई क्लियर? क्लियर है? सेक्शन 70, यहाँ पे भी बात ऑब्लिगेशन की हुई है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेटुइशियस एक्ट। देखो, ग्रेटुइशियस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। पहले लिख लो, ग्रेटुइशियस का मतलब क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट का मतलब क्या होता है, बिना कंसिडरेशन के। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कंसिडरेशन के है उसे क्या कहते हैं, ग्रेटुइशियस। जहां पे नॉन वर्ड आ जाए उसे क्या कहते हैं, विद कंसिडरेशन। नॉन ग्रेटुइशियस का मतलब क्या होगा, विद कंसिडरेशन। आप इसे नोटबुक पे लिख लें, ठीक है। ए ट्रेडमैन, एक ट्रेडमैन है जो क्या करता है, लीव्स अ गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। वो क्या करता है, गलती से गुड्स को कहाँ छोड़ आता है, बी के घर के बाहर। बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे ए फॉर देम। उसको बी उसको कैसे ट्रीट करता है कि अच्छा ये तो मेरा ही मेरी चीजें हैं, तो वो उसे ट्रीट कर लेता है अपनी। लेकिन ना तो उसने उसके पैसे दिए हैं, ठीक है, ना उसने ऑर्डर किया था, लेकिन बाद में ही वुड बी बाउंड टू मेक द पेमेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे उसने जो गुड्स दिए हैं, एक तो होता है किसी ने गिफ्ट रख दिया आपके घर के बाहर, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जहां पे वो चीज इसलिए दी गई थी कि उसकी मुझे कुछ पेमेंट मिले, नॉन ग्रेटुइशियस एक्ट था, क्या। ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए ने क्या किया, बी की प्रॉपर्टी को फायर से बचाया। इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन इफ सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटुइशियसली। अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर में जो आग लगी थी उसको बचाना चाहता था, या मैं उसको बचाना नहीं चाहता था, राइट। आप ये कभी कभी अगर किसी घर में आग लग जाए, बहुत से लोग आके हेल्प करने लग जाते, तो वो सबकी ये नहीं होती इच्छा कि हमें पैसे लेने, बाद में दे आर हेल्पिंग विद एन इंटेंशन टू हेल्प द अदर पार्टी। लेकिन समटाइम्स पीपल हेल्प, वो कमर्शियल होते हैं, वो तभी हेल्प करते हैं जब उनको पैसे मिल रहे हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है उसने किस इंटेंशन से वो किया था, ठीक है। सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। तो ये जो सेक्शन है, इट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। तो क्या बात हो रही है कि ये सेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है कि पर्सन जो है उसको अगर गुड्स मिल जाए, नाउ लेट्स से एक पर्सन है, उसको उसको कोई चीज मिल गई, मिल कैसे जाती है, समटाइम्स देयर इज अ आपको कोई चीज किसी की खो गई और वो आपको मिल गई। इमेजिन करो, काऊ की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट विच इज ऑफ 1876। 1876 के एक्ट की बात हो रही है। और 1876 के एक्ट में अगर हम देख के चलें, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, उस टाइम पे जो मेन लोगों का होता था ना, मनी, जो उसका धन होता था, उनकी कैपिटल होती थी, वो होती थी उनकी कैटल। कैटल क्या, काओ, राइट, हेन, राइट, गोट, ऐसी चीजों को वो कहते थे हमारा ये धन है। आज की डेट में भी है, बट देयर आर द थिंग्स हैव चेंज नाउ। तो उसमें क्या होता था, कभी कभी वो खो जाती थी। अगर किसी की काओ खो गई, इमेजिन, और दूसरे को मिल गई, ए की खो गई और बी को मिल गई, अब बी उसे कैसे रखेगा, ऐसे तो नहीं कि वो ही गिव अ नोटिस, एक इंफॉर्मेशन एक न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी अनाउंसमेंट करा देगा कि किसी की काऊ अगर खो गई है तो वो मेरे पास है, आके आप ले सकते हैं ना। बट द थिंग इज, अगर कोई लेने नहीं आता उसको जितने भी दिन, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, उस काऊ को रखने की, ठीक है। सबसे पहले वो उस काऊ को रोज के रोज खाना देगा। खाना कैसा, दाल रोटी सब्जी नहीं देगा, उसके लिए स्पेशली
उसका स्पेशल फूड है वो आएगा। देन ही वुड आल्सो बी गिविंग अ काउ मेडिकल फैसिलिटी अगर वो सिक हो जाती है, अगर बीमार हो जाती है। And then let's say the person find the true owner find the cow after 30 days, 30 दिन लग जाते हैं और 30 दिन के बाद उसका ओनर आता है ना, वो नोटिस पढ़ के, वो इंफॉर्मेशन पढ़ के। नाउ फॉर 30 डेज ही वुड से कि मैंने इसके ऊपर कितना खर्चा किया, यू आर सपोज टू गिव इट टू मी। और वो ओनर कहता है कि मैंने थोड़े कहा था इसे रख। हाउ इज इट पॉसिबल, किसी को मिला है चीज, ठीक है, वो उसने उसको उठा लिया, ही ट्राई टू फाइंड द ट्रू ओनर, लेकिन उसकी ड्यूटी बनती थी, वो उसे अगर उसे 30 दिन खाना ना देता तो वो मर जाती, राइट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वहां पे ड्यूटी बनती है ओनर की, ऑब्लिगेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ टू प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड, जिसको वो गुड मिली है, काउ, गोट, बैट, रैट, जो भी belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as bailey। तो जिसने उस चीज को उठाया है, जो जिसकी खो गई थी, उसको उठाया, अपनी कस्टडी में लिया, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ बेली। बेली मीन्स अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ द अदर्स गुड जस्ट लाइक ही टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड। अगर उसकी खुद की काऊ थी तो कैसा उसे रखता, वैसे ही उसको रखना पड़ेगा जो किसी की काऊ मिली है। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। फाइंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात 71 में है कि उसको उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे कि कोई अपनी वैसी सेम गुड को रखता है। अगर किसी को गोल्ड मिल जाए, गोल्ड किसी का गिरा और किसी को मिल गया, है ना, तो और उसने इश्तेहार दे दिया जिसका भी गोल्ड खोया है वो मेरे से आके ले ले, है ना, आप बता देना क्या चीज खोई है आपकी। नाउ द थिंग इज, अब उस गोल्ड को कैसे रखेगा, कहाँ पे, अपने गोल्ड को हम कैसे रखते हैं, लॉक एंड की में, ऐसे तो नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। तो उसको भी उसकी फाइंड की हुई चीज को कैसे रखना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ अ गुड। फिर इसके बाद किसकी लाइबिलिटी बनेगी, जो उसका ओनर है, जब उसे फाइंड आउट कर लेगा उसकी क्या बनेगी, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हुम money is paid or things delivered by mistake under coercion। This section provides that a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it। कैसे, कभी कभी ये जो हम 19A पढ़ते हैं कि कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अंडर कोरिजन क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। उसकी एक्चुअल में लाइबिलिटी कहाँ पे लिखी हुई है, 72 में। जब आप कोरिजन करते हो 15 सेक्शन के अंदर तो आप उसका इफेक्ट लिखते हो 19 के अंदर, फिर उसकी लाइबिलिटी लिखते हो क्या है, वॉइडेबल हो गया, लेकिन लाइबिलिटी क्या है पर्सन की, तो वो क्या करेगा, कोरिजन के अंडर है तो उसे उतने पैसे वापस करने पड़ेंगे अगर उसने कोई पैसे ऑलरेडी ले रखे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कोरिजन का। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदूक रख के बोलता है कि साइन कर कि तू मुझे घर अपना 5 लाख में बेचेगा, ठीक है, और उसे 5 लाख दे देता है, और उसका घर, जब उसको घर देना है, वो 5 लाख तो ले लिया उसने क्योंकि उसने बंदूक रखी हुई थी कि 5 लाख ले और मुझे घर दे, लेकिन जब घर देना था, घर के कागज बनाए एंड ऑल दैट, तब वो कोर्ट में चला गया, योर ऑनर ये तो कोरिजन है, तब उसने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉइड, क्योंकि ये वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन वन पार्टी, उसने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है कि जो 5 लाख लिए वो तो वापस करेगा, राइट, वो 72 के अंडर करेगा। तो और ए एंड बी ज्वाइंटली ओ 100 रुपीज, ए और बी ने क्या किया, एक साथ 100 रुपए लिए मिलके, है ना, सी से ले लिए, तो इट मीन दोनों की लाइबिलिटी 50 रुपए थी सी को देनी। बाद में क्या किया, ए और बी दोनों ने अलग अलग 100 100 रुपए वापस कर दिए, सी ने ले लिया, तो सी की यहाँ क्या बनती है अंडर सेक्शन 72 लाइबिलिटी, कि वो एक 100 रुपीज वापस करे उन दोनों में से किसी को। इज दिस क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, है ना? लेट अस टॉक अबाउट कंटीजेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 31 के अंदर है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज कोलेटरल टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। मतलब उसमें अनसर्टेन एक चीज होती है, अगर वो हो जाए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आज रेन होगी या नहीं होगी, अगर आज बारिश हुई तो मैं आपको पोटैटोज बेचूंगा 500 रुपीज पर केजी, कि मैं आपको 500 रुपए किलो के हिसाब से ये चीज बेचूंगा, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा फुल फ्लेज्ड वैलिड है, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एम आई क्लियर? तो ये कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग होता है, लेकिन उसके साथ एक इवेंट पहले है जो अनसर्टेन है, वो होगी तो वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ इवेंट टू विच इट इज रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया आज पाकिस्तान से जीता तो मैं तुम्हें शुगर बेचूंगा, ठीक है। अगर इंडिया हार गया तो मुझे शुगर नहीं बेचनी, बात खत्म, ठीक है। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके साथ कोलेट्रल होनी चाहिए, उसके बाद कोलेट्रल, ठीक है, उसके बाद होनी चाहिए। पहले वो इवेंट होगी, फिर वो कोलेट्रल इवेंट होगी, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट, आप एक केस पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कंटिंजेंट होते हैं कि नहीं? तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर नॉट कंटिंजेंट, क्योंकि वो कोलेटरल नहीं होते। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो ये होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा और तुम मेरे लिए ये करोगे। उसमें ये नहीं होता कि अगर तुमने ये होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी होता है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर नॉट कंटिंजेंट एट ऑल। और contingent contract are not need not necessarily be independent on any external event। वो किसी एक्सटर्नल इवेंट पे नहीं होते डिपेंडेंट। वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? आपने पिछली बार जब आप अपना पेपर दे रहे होंगे फाउंडेशन का, तब आपने सेक्शन इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कंटिजेंट को। नॉट ओनली 31, अभी सिर्फ 31 की बात हो रही है, लेकिन तब आपने 31, 32, 33, 34, 35, 36 पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये भी पढ़ा होगा अगर ये शिप आज वापिस आ गया तो मैं तुम्हें ये दूंगा, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने। और वो शिप डूब गया तो इम्पॉसिबिलिटी होगी। ए और बी ने कहा कि अगर वो उससे मैरी करेगा तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, और बी ऑलरेडी मैरिड है ना। आपने ये सब एग्जाम्पल तो पढ़ी होंगी, लेकिन आपके सिलेबस में है शायद 32 भी है। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट डू और नॉट टू डू समथिंग, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कुछ होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ कि मैं तुम्हारा घोड़ा तब खरीदूंगा अगर मैं सी से ज्यादा देर जिंदा रहा, मतलब सी मेरे से पहले मर जाए। ए सर्वाइव सी का मतलब ए जिंदा रहेगा सी के मरने, मतलब ए बाद में मरेगा सी के बाद, लाइक सी डाइज बिफोर ए, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन लॉ अनलेस सी डाइज इन एज लाइफ टाइम। ये कब इन्फोर्स होगा? हमें वेट करनी पड़ेगी जब तक ए और सी में से कोई पहले नहीं मर जाता। अगर पहले ए मर जाएगा तो फिर भी ये इन्फोर्स नहीं होगा, तो वो उसका घोड़ा नहीं खरीदेगा। A makes a contract with B to sell horse to B at a specific price if C to whom the horse has been offered refuse to buy। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा 5000 में खरीदूंगा, कोई स्पेसिफाइड प्राइस कर लेते हैं, लेकिन वो कहता है अगर मैं तब लूंगा टू whom द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाय हिम। अगर मैं तब लूंगा तुम्हारा घोड़ा अगर सी ने मना कर दिया लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन कंटीजेंसी क्या होगी? सी हाँ भी कर सकता, सी ना भी कर सकता। अगर सी मना कर देगा तो ये एप्लीकेबल होगा एज इट इज, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट a contract to pay B a sum of money when B marries C, C dies without being married B, then the contract becomes void। तो क्या हो क्या वो मर ही जाता है तो कभी भी ये नहीं होगा, ये क्या बन गया? void contract। Section 33, 33 provides the enforcement of contract contingent on an event not happening। अभी तो हमने ये किया ना, अगर ऐसे हो गया तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट करूंगा, अगर ऐसे हो गया तो कॉन्टेक्ट करूंगा। बट नाउ वी आर डीलिंग विद अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ये एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। तो वो क्या कह रहा है कि अगर ये शिप वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें ये इतने पैसे दूंगा। तो यहाँ पे डज नॉट की बात हो रही है, ना आया, ठीक है। अब यहाँ पे 33 में अगर कंटिजेंट इवेंट नहीं होगी, पहले हम क्या कर रहे थे, कंटिजेंट इवेंट अगर होगी तो अगर ये शिप ना आया तो ये एप्लीकेबल होगा, राइट। कभी कभी क्या होता है, सेक्शन 34 में ये बात की हुई है डीम्ड इम्पॉसिबल, कोई कुछ इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है जो हो ही नहीं सकती। वो क्या कहता है, ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी बी मैरिज सी। अगर बी सी से शादी करेगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन सी किससे शादी कर लेता है? डी से। अगर सी ने डी से ही शादी कर ली, ठीक है, तो फिर अब बहुत रेयर चांस है, ये एक बार तो इम्पॉसिबल बन गया कि अब कभी सी उससे बी से शादी करेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे 35 जो है, ये जब एक बार इम्पॉसिबल हो गया तो यहाँ पे कंटिजेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है।
Section 35 provides for contract which are contingent on happening of specified event within a fixed time. कभी कभी वो एक specified time कर देते हैं. Specified time क्या होता है? For example, अगर ये शिप 1 साल में वापस आ गया तो मैं तुम्हें ये दूंगा. चाहे वो अगर वो 1 साल 365 डेज या 366 डेज के बाद वो 368th डे पे आ जाता तो ये कंटिंजेंट नहीं होगा. तो ये कंटिंजेंसी एप्लीकेबल नहीं होगी. ये कब एप्लीकेबल होगी? अगर वो शिप सिर्फ 1 साल में वापस आएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक टाइम बाउंड कर दिया. ठीक है, अगर वो 1 साल में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली कंटिंजेंसी वुड कम टू एन एंड. देन कम 36. ये क्या कहता है कि 36 सेक्शन कहता है कि अगर कंटिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन. तो वो क्या कहता है? अगर कुछ इम्पॉसिबिलिटी की बात हो तो कंटिंजेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे बी 1000 इफ टू स्ट्रेट लाइन. दो स्ट्रेट लाइन को आप कितना भी सीधा खींचते जाओ वो कभी भी नहीं आपस में मिलेंगी. तो ये एग्रीमेंट क्या है? ये वॉइड है. तो ऐसे कंटिंजेंट वॉइड होंगे जो इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. ए एग्रीज टू पे बी 1000 इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी. और सी उस टाइम पे मर चुकी है तो ये कभी भी नहीं हो सकता. तो ये क्या हो गया? एग्रीमेंट वॉइड. So this is all about contingent. I am very much sure you are clear about contingent. Contingent को आप करेंगे, पहले आप quasi करेंगे. quasi 68, 69, 70, 71, 72 इसकी बात करता है. ठीक है, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम सॉरी उसके बाद कंटिंजेंट की बात करते हैं. वो 31, 32, 33, 34, 35 और 36 की बात करता है. जब भी कंटिंजेंट का क्वेश्चन है तो एक बात क्लियर है, ये 31 ऑनवर्ड सेक्शन है. अब आपको ये देखना है ये किसकी बात करता है. टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जो भी इसकी बात करता है उसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. देन नाउ विल डिस्कस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसको एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो. आई होप यू कैन सी द स्टडी मटेरियल. सबको स्टडी मटेरियल दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो बताएं. सबको क्लियर है ये? किसी को डाउट है इसमें तो बता दो. तो हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी विल स्टार्ट, है ना? एक बार देख लिया करो. और आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा है? Can you Yes, see ma'am. study material? Okay, thank you very much for confirming. Okay, let us discuss. This is a very important chapter, discharge of contract. ठीक है, डिस्चार्ज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कंप्लीट करते हैं. ठीक है, कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा वो. तो इसके काफी ये पूरा चार्ट आपको ऐसे एज इट इज ही याद करना पड़ेगा और आपको हो भी जाएगा, नॉट एन इश्यू. सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है? परफॉर्मेंस से. ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है. ए सेज आई विल गिव यू 500 kg ऑफ शुगर ऑन 12th ऑफ जनवरी और वो उसके लिए तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे. ठीक है, और बी उसको 10,000 रुपए देता है और वो शुगर दे देता है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज. कैसे? बाय परफॉर्मेंस. दोनों ने परफॉर्मेंस कर दी. एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसने उसको शुगर दी और उससे पैसे ले लिए, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो होती है उसमें हम अटेम्प्ट करते हैं परफॉर्म करने की. एक पर्सन रेडी है बिल्कुल, वो कहता है मेरे पास शुगर पड़ी है आपकी, आप आओ 10,000 रुपए देके मुझसे ले लो. ठीक है, और दूसरी पार्टी कहती है कि यस आई विल कम, आज नहीं मैं कल ले लूंगी, मेरे पास 10,000 रुपए मतलब में से अरेंज नहीं हुए. तो यहाँ पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगी. एक पार्टी, वन पार्टी इज रेडी विद द परफॉर्मेंस एंड गिविंग अ नोटिस टू द अदर पार्टी, राइट, कि मैंने ये आपके लिए अरेंज कर लिया. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. जैसे आपने गाड़ी शोरूम से लेनी है तो वो आपको एक डेट देते हैं कि आप 10 दिन में अपनी गाड़ी ले जाना. आपने उसको पेमेंट कर दी है या उसकी कुछ पेमेंट कर दी, कुछ करनी है. तो जब वो आपको कॉल करते हैं कि हम आपकी गाड़ी तैयार है, आप आके ले जाओ, है ना, डिलीवरी ले जाओ. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको हम क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. देखो डिस्चार्ज क्या होता है? एग्रीमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल नोवेशन. नोवेशन का मीनिंग लिखो न्यू, न्यू कॉन्ट्रैक्ट.
ठीक है। अगर सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज में, उसकी जगह पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह पे बना लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि नोवेशन हैज कम इनटू existence and the new contract has come in at the place of original contract। तो इससे क्या होता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। ए ऑज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ए बी को मनी देता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी सी दैट बी शुड एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर। तो वो क्या डिसाइड कर लेते हैं, पहले उसने पैसे किससे लेने होते हैं, बी से। अब वो कहते हैं अब वो कहते हैं कि बी शुड एक्सेप्ट सी एज डेटर। अब ए से पैसे नहीं लेने तुम्हें, अब तुम्हें लेने हैं सी से पैसे इंस्टेड ऑफ ए। तुम्हें सी से पैसे लेने हैं, ए से पैसे नहीं लेने। ए ने उधार लिया किससे, बी से। बी ने किससे लेने हैं, ए से, लेकिन उन्होंने न्यू एग्रीमेंट कर लिया कि अब ए से नहीं लेने, सी से। तो इट मीन्स जो अर्लियर एग्रीमेंट था ये वाला, जिसमें उसने बी ने ए से पैसे लेने थे, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वन और मोर टर्म्स। हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर रहे, जैसे इनोवेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, इसमें वन और मोर टर्म्स जो है वो चेंज हुए हैं। तो नोवेशन में तो पूरी की पूरी पार्टीज वार्टीज सब चेंज होगी, लेकिन ऑल्ट्रेशन में पार्टी सेम रहेंगी, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होगा, कुछ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसीशन, रिसीशन मीन्स कैंसिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। तो अगर कोई भी सारी और कुछ टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं रिसीशन। फॉर एग्जांपल, ए promises to deliver certain good to be at a certain date before that date of performance and we mutually agreed। mutually का मतलब दोनों ने मिलके ये डिसाइड कर लिया, म्यूचुअली ये डिसाइड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नीड हमें नहीं परफॉर्म करना ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय रिसीशन। एक होता है रिमीशन। रिमीशन मीन्स ए ने पैसे लिए बी से कितने, 500। ठीक है, तो इट मीन 500 ही वापस करने हैं। लेकिन ए ने बोला चल ठीक है 250 रुपए ले ले, अब प्लीज मेरे पास है नहीं। और बी भी कहता है ठीक है, अगर आज ही तू मुझे 250 दे रहा तो मैं तेरा माफ करता हूँ। तो रिमिट रिमिट हो गए, कम हो गए उसके पैसे। तो 500 की जगह उसने 250 एक्सेप्ट करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया। वेवर, वेवर का मतलब होता है कुछ अपने राइट्स को छोड़ देना, फॉर गोइंग सर्टेन राइट्स, जो मेरे अधिकार है उनको छोड़ देना, राइट। A promises to paint a picture of B. B afterward forbids him to do so. Is no longer bound to perform the promise. फॉर एग्जाम्पल कैसे किया उसमें, ए ने बी को बोला तुम मेरी पिक्चर बनाना, पोर्ट्रेट बनाना, बी पेंटर है। तो उसके बाद ए को अवेलेबल होना पड़ेगा, वो पिक्चर किसकी बनाए, वो अपनी थोड़े बना लेगा। तो उसके बाद बी अवेलेबल ही नहीं हुआ, ए के पास आया ही नहीं अपनी पिक्चर बनवाने, या कोई टाइम ही नहीं दिया कि इस दिन मेरी पिक्चर बना लो। तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वेव हो गया, क्योंकि तुमने उसको राइट ही नहीं दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। क्लियर। तो कितने तरीके का यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस आपको क्लियर हो गया, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। आपको डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट हो गया, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसीशन, रिमिशन और पेबल। ठीक है। थर्ड नंबर ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मींस इतना टाइम हो चुका है कि अब उसे कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, इतना लंबा टाइम खींच चुका है। ठीक है। ये कैसे होता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम उसने दिया था वो खत्म हो गया। ठीक है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ फिक्स्ड और रीजनेबल पीरियड। क्या, lapse of time discharges the contract. The Indian Limitation Act has prescribed the period within which existing rights may be enforced। अगर क्रेडिटर है, उसने सूट फाइल नहीं किया, अगर किसी ने किसी से पैसे लेने और 3 साल तक उसने केस ही फाइल नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डेट क्या बन जाएगा, टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का मतलब अब वो कोर्ट में नहीं जा सकता, अब वो बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज बार्ड बाय टाइम, बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज होता है तो उसके 3 साल के अंदर आपको कोर्ट में केस कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा टाइम लगाएंगे, चाहे आपको प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कोर्ट उस केस को डील नहीं करेगी, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली ही कोर्ट चलती है, राइट। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कभी कभी किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लॉ के अकॉर्डिंगली भी डिस्चार्ज हो जाता है। वो कैसे होता है, डेथ, राइट। अगर पर्सनल स्किल की बात है, किसी को सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, किसी कॉन्सर्ट में डांस करना, सिंग करना, ठीक है, और उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उसके लीगल ईयर
उसके लीगल हियर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी की पर्सनल स्किल है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ के साथ खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। एंड देन इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी जो होती है वो इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि प्रोमिसर अपनी अब लाइबिलिटी दे ही नहीं सकता, तो उससे क्या हो जाएगा, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, कोई ऐसी मटेरियल चेंज, ऑल्टरेशन का मतलब चेंज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में और उसमें पार्टीज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, तो उससे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मर्जर, एक इंफीरियर राइट ऑफ अ पर्सन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद सुपीरियर राइट्स, आपने देखा होगा मर्जर होते हैं, मर्जर क्या होता है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ओवरटेक कर लेती है, राइट। या फिर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है, लेकिन जो बड़ी है जो उसे ओवरटेक करती है वो अपने राइट्स चलाती है, तो वहां पे जो इंफीरियर के राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेर अ पार्ट टाइम लेक्चर इज मेड फुल टाइम लेक्चरर, मर्जर डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्ट टाइम लेक्चररशिप। अगर वो कोई पहले पार्ट टाइम पढ़ा रहा था, अब वो फुल टाइम हो गया, तो उसके जो पार्ट टाइम के जो राइट थे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, क्योंकि उसके अब फुल टाइम के सारे राइट्स लगेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस, हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, आज एक चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगी इम्पॉसिबिलिटी होती कैसे है। इम्पॉसिबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एट दैट टाइम इट वाज पॉसिबल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, इट वाज पॉसिबल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल भी बताया था, एलियन फ्रेंड्स बिकम्स एलियन एनिमी, दो कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन दोनों कंट्रीज में वॉर हो जाती है, तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच, ब्रीच क्या होता है कि एक पार्टी फेल हो जाती है टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो उससे क्या हो जाता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ए एंड बी वांटेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द फिक्स्ड टाइम फिक्स्ड फॉर मैरिज, ए गोज मैड, अब एक बंदा मैड हो गया तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा, इससे क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने अगर इस चार्ट को देखें तो हमने इसमें किया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसीशन, रिमिशन, वेवर। हमने फिर लैप्स ऑफ टाइम किया कि 3 साल के बीच बीच में या रीजनेबल टाइम के बीच में करना चाहिए। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन एंड देन मर्जर, ठीक है। एंड देन वी डिड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को इस पूरे चार्ट में कोई चीज कोई वर्ड नहीं क्लियर तो वो पूछ सकते हैं आप, इसको आपने पूरे अच्छे से पहले इसके हेडिंग्स याद करेंगे, बाय परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप कैसे करेंगे, इसके आगे जो है उसकी फॉर्म्स को याद करें। एम ए क्लियर, ठीक है, सबको क्लियर है। राइस मटेरियल किसी अल्टरेशन। मटेरियल ऑल्टरेशन क्या होती है, एक ऐसी ऐसी चेंज कर दी आपने, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज कर दी जो कि जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे इंफीरियर के राइट, एक मिनट, जब आपने मटेरियल ऑल्टरेशन कर दी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को बताया ही नहीं। लेट्स से अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसने आपको बोला कि आपको 2% मुझे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, अब उसने अपने आप से चेंज करके 2% को 6% कर दिया, तो यहाँ पे तो ये ब्रीच हो गया, क्योंकि जिसने लाइबिलिटी देनी उसको तो पता भी नहीं है, ऐसी मटेरियल ऑल्टरेशन की जो अदर पार्ट, जो दूसरी पार्टी को पता ही नहीं। कभी कभी ये उस केस में भी होता है जहां पे कोई गारंटी ले रहा हो, आपकी गारंटी ली है किसी ने कि अगर इसने पैसे न दिए तो मैं दूंगी, अब अब उसमें एक ऐसी चेंज कर दी जिससे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका 2% से 6% इंटरेस्ट कर दिया, उससे मेरी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी गारंटर की, तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड, ठीक है। समझ आया कि यस। और कुछ बता, ठीक। टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ऑल्टरेशन, आप ये याद रखना कि एक ऐसी इतनी बड़ी चेंज कर दी बिना दूसरी पार्टी को बताए तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक नोटिस इशू करते हैं,
प्लेंटिफ कहता है कि कॉलिंग अपॉन टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है तो विद इन 10 मंथ्स करोगे, 12 मंथ्स करोगे, 2 इयर्स में करोगे। अगर ये नहीं हुआ 2 साल में तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें एक पूरा ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट करने का पर्टिकुलर टाइम है।